welcome to the last video of coordinate geometry. In today's video we are going to discuss some HOTS question, that is the optional exercise, which is not from the examination point of view, but you should know the logic. Obviously there are some questions which are not applicable for this board examination because area of triangle formula is not in the syllabus. That is why I have left exercise 7.3 also. So 7.3 भी नहीं करनी जो कि area related to triangle का है, how to find area using coordinate geometry, and उसमें से काफ़ी कुछ questions 6 and some part of the question जैसे ये वाला question का part जिसमें area calculate करना है वो भी cancel हो गया. Let's do the questions. Let's start with question number 1. Determine the ratio. ये तो मैंने आपको already समझाया हुआ है. जब भी ratio find करना है तो हमेशा ratio को let the ratio be, you always take the ratio as k is to 1. Okay children, so this is the ratio in which the line, there is a line which divides a line segment. So suppose this is a line segment, A, B, coordinates are 2, -2 and the other coordinate is 3, 7. It is divided by a line whose equation is 2x plus y minus 4 is equal to 0, and we have taken the ratio as k is to 1. So can I take this point coordinate C using section formula? Now I will do it little quickly. तो k into क्या होगा 3, so 3k plus 1 into 2, that is 2 upon k plus 1 will be the x coordinate. Similarly 7 into k minus 2 into 1 यानी कि minus 2 upon k plus 1 will be the coordinate of point C. तो सबसे पहला step हमने C के coordinate find कर लिए using section formula. उसके बाद next जो step है वो क्या है कि हमें ये coordinate, ये जो point C है बेटा वो इस line को भी satisfy करता है, right? So C satisfy 2x plus y minus 4 equals to 0. तो x की और y की वैल्यू पुट कर दीजिए. Twice of 3k plus 2 upon k plus 1 plus y, that is 7k minus 2 upon k plus 1 minus 4 is equal to 0. Let's just take the LCM. So 3 2s are 6k plus 4 plus 7k minus 2. पूरा LCM मैंने k plus 1 लिया है तो minus 4 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा k plus 1 के इक्वल टू 0, और ये k plus 1 उधर जाके 0 हो गया. 6k plus 7k plus 4 minus 2 minus 4k, right, and minus 4 is equal to 0 because k plus 1 into 0 is this. This and this gets cancelled. So 6 में से 4 गया, 2 हो गया, 7 plus 2 9k, right, minus 2 equals to 0. So what is the value of k? 2 by 9. So ratio क्या है वो k is to 1 था, यानी कि 2 is to 9 is the ratio. Okay, so this is question number 1 for you. Question number 2 हमें नहीं करना because again वो कोलिनियरिटी पे बेस्ड है. कोलिनियरिटी मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो इक्वल टू 0 होगा. सो ये आपका सिलेबस में नहीं है. सो क्वेश्चन नंबर 3, द सेंटर्स ऑफ अ सर्कल पास थ्रू. ओके, देयर इज अ सर्कल, फाइंड द सेंटर. हमें इस सर्कल का सेंटर सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ O फाइंड करना है जो कि XY ले लेते हैं. Where the circle is passing through 3 given points. What 3 given points? 6, -6, 3, -7 and 3, 3. Suppose this is A, this is B and this is C children. So can I say ये अगर O center है तो ये सारे जो है बेटा वो radii होंगे and obviously radius of a circle are equal. Now I will tell you a trick here. हमेशा हमें x और y दोनों फाइंड करने हैं, राइट? तो इनिशियली जो फर्स्ट इक्वेशन है वो उससे बनाइएगा जिससे कि कोऑर्डिनेट एटलीस्ट एक कोऑर्डिनेट जिसका मैच करता हो. मैं बताऊंगी क्यों. है तो ये कि AO इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC है, लेकिन हम पहली सिचुएशंस
जो पहला केस लेंगे वो ये लेंगे, क्यों लेंगे उसका मैं आंसर आपको जस्ट नाउ आई एम गिविंग इट टू यू. वाई? बिकॉज चेक हियर, उन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट मैच करता है, दैट इज़ वाई. सो ओ बी में अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस सेवन प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर ओ सी प्लस y माइनस थ्री का होल स्क्वायर. अगेन ये क्लैरिटी आ जाएगी आपको. क्यों? अगर डिस्टेंस सेम है तो उसका स्क्वायर भी सेम होगा. अगेन अ टाइम सेविंग ट्रिक चिल्ड्रन, ताकि स्क्वायर रूट हट जाए. चेक करो, जो सेम वाला टर्म सेम वाला कोऑर्डिनेट है वो एज इट इज कैंसिल हो जाएगा, राइट, दोनों साइड. तो चेक करो, वाई स्क्वायर प्लस 49 7 2 14y is equal to y square plus 9 minus 6y. y square भी कैंसिल हो गया. सो 14y plus 6y is equal to 9 minus 49. So this is 20y is equal to minus 40. So y की वैल्यू आ गई minus 2. Right, so we have got the value of y as minus 2. अब y आपका minus 2 आ गया है तो हमारे पास x जो है वो तो आ ही जाएगा. कैसे? अब आप कोई भी केस ले सकते हो, जैसे OA equals to, राइट, OA equals to OB ले लो. तो इसका मतलब अगेन AO स्क्वायर equals to OB स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस सिक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस सेवन का होल स्क्वायर. पुट द वैल्यू ऑफ y. सो x माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस y की जगह माइनस टू प्लस सिक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस अगेन माइनस टू प्लस सेवन का होल स्क्वायर. ओपन कर लीजिए. ए स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर 36, सिक्स टू ज़ार 12x प्लस फोर का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस थ्री टू ज़ार 6x प्लस दिस इज़ 5 का स्क्वायर 25. अगेन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट चिल्ड्रन. इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे. हम x पॉजिटिव रखते हैं तो 36 प्लस 16 6 6 12 2 1 3 1 4 5 52 माइनस 9 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 12x. राइट, सो कितना आ गया? आ गया 6x इज इक्वल टू, ऐड कर देते हैं, दिस इज 4 34 52, राइट. सो 12 में से 4 8 18. सो x इज इक्वल टू 3 आ गया. सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? 3 comma minus 2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए, अच्छा, स्क्वायर है और उसके ऑपोजिट वर्टिसेस हमें गिवन है. स्क्वायर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल. अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला का ही लॉजिक लगेगा. लेट्स चेक. A, B, C and D. This is minus 1, 2 opposite vertices. This is 3, 2. Right, and find the other two vertices. Other two vertices हमें find करने हैं. Right children? All right. So कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं. इसे ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2. Okay. Let's find out AC first. AC will be अंडर रूट ऑफ, ये तो निकल ही जाएगा, 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि AC is 4. Right children, so AC is 4. Now we can also find, एक और भी हम कर सकते हैं. कैसे?
diagonals of a square bisect each other, right children? So हम coordinate of OB find कर लेंगे. चेक कर लेते हैं coordinate of O क्या आएगा. O is midpoint of AC. तो हमारे पास coordinate of OB आ गया. -1 + 3/2 x1 + x2 by 2 and 2 + 2 by 2. यानी कि हमारे पास coordinate of O कितना आ गया. 1, 2. This is the coordinate, right? Now children, हमारे पास ऑलरेडी AC गिवन है, यानी कि हमारे पास डायगनल आ गया. कैन आई से, इफ यू रिमेंबर, diagonal of a square is √2a, right children? So 4 √2a. So a is equal to 4 by √2. If we want to rationalize it, ताकि रूट हट जाए डिनोमिनेटर से, सो हमारे पास साइड ऑफ द स्क्वायर आ गई जो कि 2√2 आई है, राइट? सो दिस इज आर कोऑर्डिनेट साइड्स ऑफ द स्क्वायर. नाउ लेट्स फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करने हैं. अब हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए लेट्स चेक AD क्या आएगा. AD विल बी, कैन आई से, √of x2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 2 का होल स्क्वायर, राइट चिल्ड्रन? सिमिलरली हमारे पास CD आ जाएगा. CD विल बी √of x2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 2 का होल स्क्वायर. नाउ चेक, मैंने जानबूझ के ये दोनों साइड्स लिए. क्यों? क्योंकि अगेन चेक करिए, आई एम टेलिंग यू द ट्रिक हियर. अगेन इन दोनों के जो y कोऑर्डिनेट है वो मैच करते थे. अब कैन आई से AD is equal to CD implies AD square is equal to CD square, right? तो चेक करिए हमारे पास क्या आएगा. x2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 2 का होल स्क्वायर. अगेन चेक करिए, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया. अब हमारे पास x2 की वैल्यू a² plus b² plus 2ab equals to again a² plus b² minus 2ab. x² कैंसिल हो गया. अब हमारे पास वैल्यू आ गई. कैसे? चेक करिए, 2x2 plus 6x2 is equal to 9 - 1, यानी कि 8x2 is equal to 8. सो x2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई. x2 1 आ गया. अब तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया. अगर मेरे पास x2 1 आ गया, मुझे AD ऑलरेडी पता है, राइट चिल्ड्रन? कैन आई से 1 + 1 का स्क्वायर प्लस y2 - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास साइड ऑफ द स्क्वायर हम ऑलरेडी निकाल चुके थे. चेक करिए, साइड ऑफ द स्क्वायर 2√2, यानी कि AD इज 2√2, राइट? अब ये हमारे पास AD की वैल्यू आई. सो रूट हटाने के लिए ये 4 आ गया प्लस y2², अच्छा y2² प्लस 4 - 2/2 इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग कर दी मैंने, तो अगर मैं स्क्वायरिंग करूँगी तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, राइट? सो 8 अगेन कैंसिल आउट हो गया. So this is y2² minus 2y2 equals to 8. Sorry, equal to 0. यानी कि y2 कॉमन ले लेते हैं. y2 minus 2 equals to 0. यानी कि y2 की वैल्यू क्या हो गई? 0 and y2 की वैल्यू क्या हो गई? 2. So these are the two values. y2 can be 0 also and y2 can be
2 also. So now it is simple. Okay. So coordinate is let me check. 4 आ गया y square. Oh, sorry, 2 2s are 4 होगा बेटा यहाँ. So y2 can be 0 and y2 can be 4. 0 and 4, there are two values. So हमारे पास एक पॉइंट आया 1,0, या हमारे पास पॉइंट आ सकता है 1,4 ऑल्सो. सो अब ये वैल्यू है हमारे पास. अब x1 y1 तो मिड पॉइंट से ही निकल जाएगा बहुत आसानी से. कैसे चेक कर लेते हैं. कैन आई से x1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि ये ओके कोऑर्डिनेट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1,2, राइट. सो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 2 minus 1 विच इज़ x1 इज़ 1. सिमिलरली y1 प्लस 0/2 इज इक्वल टू 2. So y1 is equal to 4, or there can be one more value, y1 plus 4/2 is equal to 2, or y1 is equal to 2 to 4, 2 to the 4, 4 minus 4 यानी कि 0, right. So again there are two different values of y1 depending upon the values of this thing y2, right children. So coordinates क्या क्या हो सकते हैं. ये तो रहा आपका x2 y2, और x1 y1 क्या हो सकते हैं. दिस कैन बी x1 इज 1, 1,0 भी हो सकता है, या 1,4 भी हो सकता है, राइट चिल्ड्रन. सो दीज आर योर आंसर्स. That is question number 3 for you. Question number 4 for you. Question number 5 भी बहुत सिंपल है. इसी फिगर में मैं आपको समझा देती हूँ. टेकिंग ए एज ओरिजिन, ए ओरिजिन है यानी कि 0 0. हमें पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं वर्टिसेस के. तो चेक करो पी क्या है. दिस इज 3, सॉरी क्यू इज 3,2. चेक कर लीजिए, राइट चिल्ड्रन. 3,2. फिर आर चेक करोगे तो चेक करो यहाँ पे 6 आया. R is 6,5, राइट. फिर P है 4,6. सो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए, राइट. अब उन्होंने, ये तो था फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट उसने बोला है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस PQR इफ C इज द ओरिजिन. अगर ये C ओरिजिन हो गया, अब उन्होंने C को ओरिजिन बोल दिया है, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस. अब आप कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा. चेक करो. 1 2 3, छोटा छोटा लिख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो P के कोऑर्डिनेट कितना, P का कोऑर्डिनेट क्या आया 12, 1 2, right. 12,2. this is 1, this is 2. Similarly R के कोऑर्डिनेट्स अगर चाहिए तो R के कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं 10,3, राइट. सिमिलरली Q के कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिख रहे हैं, दैट इज 13. Q is 13, राइट. 13,6. सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स. ट्राइंगल वाला फॉर्मूला हम नहीं कर सकते because again it is not in the syllabus. That is question number 5 for you. Okay. Question number 6 again a simple one. अच्छा 6 again syllabus में नहीं है because हमें area वाला formula लगाना पड़ेगा. Question number 7 देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? अगेन ओके, वर्टिसेस गिवन है, okay, so this is A, B and C. A is 4 comma 2, B is 6 comma 5 and C is 1 comma 4 children. ओके अब उसने बोला है कि एक मीडियन फ्रॉम ए, एक मीडियन ड्रॉन है। मीडियन का आपको पता होता है डेफिनेशन, अगर नहीं भी याद है तो मैं याद करा देती हूँ। मीडियन एक ऐसी साइड होती है जो ट्राइंगल की ऑपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो डी जो है वो क्या हो जाएगा? डी इज़ द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम सबको आता ही है, दैट इज़ 6 plus 1 by 2, that is this will be 7 by 2 comma 9 4 plus 5 5 plus 4 that is 9 by 2. So D के coordinates हमारे already आ गए, that is the first part of the question. अब उसने बोला है find the coordinates of P on AD such that कोई एक point है P such that AP is, यहाँ पे P है, AP is 2:1. सो ऑब्वियसली P के कोऑर्डिनेट्स किससे आ जाएंगे? सेक्शन फॉर्मूला से 2 इंटू 7/2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन रेशियो दैट इज 1+2 कॉमा सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स 2 इंटू 9/2 राइट, 2 इंटू 9/2 प्लस 1 into 2 upon again the ratio that is 1+2. So section formula से यहाँ मैंने section formula लगा लिया जो कि मेरे पास coordinates आ गए किसके? P के coordinates using section formula. After that अगला part of question क्या कहता है? Find the coordinates of Q and R. अच्छा, सेम वे में ये आप क्वेश्चन अब खुद कर सकती हो Q एंड R का। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो पॉइंट P, Q और R आएगा राइट, उनके सबके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम आएंगे। जैसे P के कोऑर्डिनेट्स आपके सिंप्लीफाई कर लेते हैं 11/3 कॉमा 11/3 आ रहा है P के। R के भी कोऑर्डिनेट्स जब आप इस वे में निकालोगे सेम वे में R एंड Q वो भी यही आएंगे। तो यानी कि यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि जो P, Q एंड R है दे आर द सेम पॉइंट्स। These are also known as the centroids. We can also say that centroid. तो इससे हम एक फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं that centroid of the triangle is x1 plus x2 plus x3 by 3 coordinates of centroid and y1 plus y2 plus y3 by 3. These are the points for coordinates of centroid of the triangle. तो centroid क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जिसमें सारे मीडियंस जो हैं वो मीट करते हैं। Alright, that is question number 7 for you. अब क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करेंगे? सेंट्रॉइड अगेन सेम रेशियो 2:1 लेके हम वैल्यूज पुट कर देंगे। दैट इज हाउ वी विल, लेट मी जस्ट शो यू क्विकली 5th पार्ट। चेक करिए, अगर ये पॉइंट A, B एंड C है, इनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, दिस इज x2 y2 and this point is x3 y3 और हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर वो फाइंड करने हैं। सेंट्रॉइड मीन्स अगेन जहाँ पे मीडियन 2:1 का रेशियो। तो चेक कर लीजिए, पहले ये पॉइंट आ जाएगा D, जो कि D कैसे आएगा? मिड पॉइंट फॉर्मूले से। चिल्ड्रन अगेन जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कराया था, तो D के कोऑर्डिनेट्स आ गए x2 plus x3/2 कॉमा y2 प्लस y3/2। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए D के। ये रेशियो 2:1 है। अब P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम उसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे। तो कैसे आएगा? 2 इंटू x2 प्लस
x3 by 2, this into this, right? Section formula, plus 1 into x1 अपॉन नीचे रेशियो 2+1. तो चेक करो, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया. सिमिलरली y का भी यही पॉइंट आएगा, 2 इंटू y2 माइनस y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 2+1. तो चेक करिए, अगेन यहाँ पे भी 2 and 2 कैंसिल हो गया. चेक करिए, यही फॉर्मूला आया था जो मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड पे लिखवाया था, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3. This is your formula for the centroid of the triangle. And the last question of the exercise, question number 8. ABCD is a rectangle. Okay, हमें already एक rectangle given है. It is looking more like a square, but it is fine. So A, B, C and D are rectangle जिसके coordinates given है -1 -1. This is -1 4. This is 5 4 and this one is 5 -1. Okay, फिर सारे के मिड पॉइंट्स गिवन है P, Q, this is R and this is S. अब मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली दिस इज -1 प्लस -1 अपॉन 2, दैट इज -1. दिस इज -1 प्लस 4, दैट इज 3/2, राइट. ऐसे ही ये P आया. सिमिलरली ऐसे ही आप Q निकाल लोगे, राइट. Q क्या आएगा, 4/2, दैट इज 2. दिस इज 4 प्लस 4, 8/2, दैट इज 4. सिमिलरली R निकाल लोगे, राइट. R क्या आएगा, चेक कर लो, 5 प्लस 5/2, दैट इज 5. दिस इज -1 प्लस 4, दैट इज 3/2. और S ऐसे ही S भी आ जाएगा, 4/2, दैट इज 2. दिस इज -1 प्लस माइनस. सो ये आपके सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, इज ABCD अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगल और अ रोम्बस, जस्टिफाई योर आंसर. सो बेसिकली आपको करना क्या क्या है, आपको PQ निकालना है, राइट. आपको QR निकालना है, आपको RS निकालना है और आपको SP निकालना है. आपको ये सारी साइड्स फाइंड कर लेनी है, ऑल 4 साइड्स. अगेन 4 साइड्स आप कैसे फाइंड करोगे, आपको पता ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू, राइट. डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू जब आप सारी साइड्स फाइंड कर लोगे, उसके बाद आप डायगनल्स चेक करोगे कि व्हाट आर द डायगनल्स. ऑल साइड्स आर कमिंग आउट व्हेन यू विल यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला. आपको आता ही है, every side will come out to be √61/2. So सारी sides सेम आ जाएंगी, all sides will be equal to the same number. अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अब हम डायगनल्स की साइड डायगनल्स फाइंड करेंगे, यानी कि PR फाइंड करेंगे और SQ भी फाइंड करेंगे, राइट. जब हम PR और SQ फाइंड करेंगे तो हमारे पास डायगनल्स आ जाएगा, विच इज़ वन इज 6, द अदर वन इज 5. सो डायगनल्स अनइक्वल आ गए और सारी साइड्स इक्वल आ गई. दैट मीन्स द फिगर इज अ रोम्बस, इट इज़ नॉट अ स्क्वायर, right children. So this is how you will justify your answer, that जो फिगर है, जो क्वाड्रिलैटरल है, वो क्या होगा, राइट. अगेन इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक फॉर्मूला लगना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ. सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, आई एम लीविंग इट फॉर यू पीपल, सो यू कैन डू इट ऑन योर ओन. ठीक है, डायगनल भी मैंने आपको बता ही दिया है, एक 6 आएगा और एक 5 आएगा. सो आई वॉन्ट यू टू डू revise this entire chapter. I have told you this formula is not in your syllabus.